Dear students, this is our class 11th subject history. The unit or the theme is Mesopotamian civilization, and today's topic or the chapter is the legacy of writing. The legacy means the inherent property or the wealth that has been ट्रांसमिटेड फ्राम प्रेडिसर्स और द पास्ट, यानी वो लेगेसी ऑफ राइटिंग मीन्स जो हमें विरसे में मिली है, जो हमें पास्ट में मिली है, जो हमें प्रेडिसर से मिली है. दैट वाज द लेगेसी फ्राम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. यानी आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमें विरसे में मिली है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की वसातत से. Especially, and this topic is known as the science and technology, or the contribution of Mesopotamian in the field of science and technology. So, the greatest legacy of Mesopotamia to the whole world is its scholarly traditions. यानी जो पूरी कायनात को ये कंट्रीब्यूशन है मेसोपोटामियन की वसातत से कि दैट इज इट इज स्कॉलरली ट्रेडिशंस ऑफ टाइम रेकनिंग और द उन्हें जो टाइम reckoning means the time reckoning means the act of calculation यानी टाइम कैलकुलेट करना and the mathematics. These are the important legacies, the property or the inherent from the inherent property from the or the records from our predecessors, that is the Mesopotamian civilization or the Mesopotamian people. In time reckoning and the mathematics, this is the first two important contributions in the form of this mathematics and time calculation to the whole world from the Mesopotamian. Next, the narratives can be transmitted orally, but science requires written texts. अगर हमें ज़बानी ट्रांसमिट उसके लिए तो वो तो ज़बानी भी हो सकता है, नरेशन तो ज़बानी भी चलेगी, लेकिन साइंस रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट, साइंस रिक्वायर्स कंक्रीट form, science requires in practical form, that should be in a written form. Why written form? That can be read and rebuild upon, यानी उस पर फिर बुनियाद होनी चाहिए. अगर हम मैथ की बात करेंगे तो ज़बानी में मैथ नहीं चलेगा, मैथ के लिए सिम्बल्स की ज़रूरत है, मैथ के लिए मुख्तलिफ उसके लिए जो टर्म्स की ज़रूरत है जिस पे मैथ बिल्ड हो सकता है, जिस पे मैथ आइंदा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसीलिए तो हमें रीड एंड रिबिल्ड के लिए रिटन टेक्स्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल फॉर्म की ज़रूरत है, कंक्रीट पोजीशन में होना चाहिए, so that we can rebuild, we can read out. We cannot rebuild on the narrations, on the oral works or the oral transmissions. यानी हमें ज़बानी जुमा खरच पे काम नहीं चलेगा, but we need the written documents, we read the written texts, and we should, so that we can rebuild the future our texts and this language or the numerals and the whole mathematics. इसके लिए हमें we have around 1800 BCE the tablets with multiplication, यानी 1800 BC के करीब हमें the tablets with multiplication, यानी हमें ऐसे tablets मिले हैं. tablets का मतलब ये है, tablets means a slab of clay, यानी tablet means वो slab, वो एक तख्ता जिस पे लिखा हुआ था और वो कुंदा हुआ करके था, मिट्टी के वो स्लेब्स थे. उन स्लेब्स में पहले उनको सुखाया जाता था धूप में, फिर उनको आग में जलाया जाता था, so that it may not be tempered, it may be portable and be from one place to easily one place to another place. यानी उनको टेम्परिंग नहीं हो सकती थी कि उनको फिर तहरीर नहीं हो जाती थी, वो सुखाया जाता था, फिर आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में आसानी होती थी. सो दोज टैबलेट्स वायर
First of all, that we have found in 1800 BCE the tablets with multiplication, यानी हमें multiplication के tablets मिले हैं, tablets of division मिले हैं, and the square and square root tablets, यानी multiplication, division, square and square root tablets के अलावा tablets of compound interest, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से भी हमें टैबलेट्स मिले हैं। यानी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम द मेसोपोटामियन पीपल, दैट वाज द लिगेसी। उसमें द मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। द नेक्स्ट द डिवीजन ऑफ ए ईयर, यानी इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा ये पूरे एक साल को उन्होंने सबसे पहली बार साल को 12 महीनों में तकसीम किया। यानी जिस तरह हम आज पूरे साल को 12 महीनों में तकसीम करते हैं, उसमें ल्यूनर कैलेंडर के हवाले से, सोलर कैलेंडर के हवाले से, उसमें भी 12 महीने ही, इसमें भी 12 महीने ही। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन मेसोपोटामियन पीपल का है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमें मिला है। इन्होंने सबसे पहली मर्तबा उन्होंने साल को 12 महीनों में तकसीम करके हमारे लिए आसानी पैदा की। जो हम आज एक साल को 12 महीनों में देखते हैं, तो ये दिस वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामियन पीपल और दिस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ मून। और सबसे पहले जो उनका 12 महीने का जो साल था, वो उन्होंने चांद की बुनियाद पे, सोलर नहीं बल्कि ल्यूनर कैलेंडर था इनका, उसी के हिसाब से 12 महीनों का एक साल था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द डिवीजन ऑफ मंथ। साल के बाद उन्होंने महीने को 4 हफ्तों में तकसीम किया है। यानी जो आज हम देखते हैं 7 दिन का एक हफ्ता है और 4 हफ्तों का एक महीना है, इसी तरह 4 हफ्तों का एक महीना था तब भी। एंड द डे इनटू द 24 आवर्स, यानी एक दिन को उन्होंने 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट्स में तकसीम किया है। यानी पहली बार 60 मिनट्स का एक घंटा और 24 घंटे का दिन और रात और 4 हफ्ते का एक महीना और 12 महीनों का एक साल। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव from this Mesopotamian people or the Mesopotamian civilization. That was the contribution of the Mesopotamian to the world, and this was the legacy of these Mesopotamian people. The next, sixth, the solar and lunar eclipse were observed according to the year. यानी सोलर और ल्यूनर जो चांद के बुनियाद पे और सूरज के बुनियाद पे जो वो गर्दानते थे, ऑब्जर्व करते थे, तो किसको, साल को भी, महीने को भी और दिन को भी। यानी वो इस तरह पूरे साल को, महीने को और दिन को इन्हीं बुनियादों पे गर्दानते थे, ऑब्जर्व करते थे। ऑल दिस वाज पॉसिबल विद राइटिंग एंड अर्बन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्कूल्स। यानी अगर हमें जो कुछ मिला है, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्बन इंस्टीट्यूशंस एंड द कंट्रीब्यूशन विद राइटिंग। जब सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल थे, जिन इंस्टीट्यूशंस में इन बुनियादों पे काम होता था, so that it may be transmitted to the next generations, and that was first with the help of writing. यानी उन्होंने पहले राइटिंग शुरुआत की, with the possibility of writing and the urban institutions with, इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। नंबर 1, उन्होंने 2 अहम काम किए थे, दैट वाज टू लोकेट। पहले उन्होंने लोकेट किया, इस पे काम किया, इस पे मेहनत की, इसको एक रिटन फॉर्म में लाया, फिर राइटिंग में लाया। एक इंस्टीट्यूशन में इस पे काम हो रहा था, इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पे, स्कूल्स की बुनियाद पे पहले उसको लोकेट किया, देन इट वाज प्रिजर्व्ड, फिर उनको महफूज रखा गया। द टेक्स्ट्स, यानी उन्होंने टेक्स्ट को महफूज रखा और एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, यानी उन्होंने प्रिजर्व किया पहले जनरेशंस का जो उन्होंने उस वक्त जो अवेलेबल था उनके पास, उसको प्रिजर्व किया, पहले राइटिंग में लाया, इससे पहले लोकेट किया, फिर राइटिंग में लाया, फिर प्रिजर्व किया, और हमारे पास जो आने वाले नस्ल हैं, आने वाले जनरेशन हैं, उनके पास उनकी ये जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो टेक्स्ट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे पास आज हम देख रहे हैं। दैट इज़ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ
the Mesopotamian civilization or the Mesopotamian people, we should thank to them because of their contribution that helped us in the modern days, or especially in the field of mathematics and the science and technology. Thank you.